Good morning, students. Myself, Gaurav Yadav, your botany educator for the new program. Today we will deal with the two topics that are mitochondria and the chloroplasts. These are the two important cell organelles of the chapter cell, as they will be studies their functions. I can say will be studies in chapters like photosynthesis and the respiration in the plants. These are the two very important cell organelles. So we will study them like that. You will never forget in the future. So keep your focus on the board and listen carefully. So we will start our topic with the cell organelle, that is the mitochondria. Mitochondria. This cell organelle is also known as the powerhouse of the cell. This cell organelle is also known as the powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. And why it is known as powerhouse of the cell? As this cell organelle is responsible for the formation of the ATP. Is responsible for the formation of ATP. And what is this ATP? ATP is the adenosine triphosphate, which provides you the energy for doing your different types of works. Okay, so what is this ATP? ATP is the adenosine triphosphate molecule. This adenosine triphosphate molecule is formed in the mitochondria, and that's why it is known as the powerhouse of the cell. So firstly we will see the mitochondria, the shape of the mitochondria, the number of the mitochondria, how they vary cell to cell. So talking about this is the another name of the mitochondria. Now we will move on to the shape of the mitochondria. Shape of the mitochondria. Shape. See, mitochondria is variable in shape, from sausage to cylindrical in shape. As this line is written in your NCERT also, that mitochondria shape is variable. It varies from the sausage to the cylindrical in shape. It varies from the sausage to cylindrical in shape. Cylindrical in shape. Now you are seeing the cylinder. That's the same shape that mitochondria can have. Now what is this sausage shape? Have you seen the roll burger, which you have written roll burger? Somewhat like cylindrical. That shape is like the sausage shape. That roll burger shape is somewhat like the sausage shape. Something like that. Something like that. This shape can be recognized as the sausage shape. Something like the roll. Okay. So this mitochondria varies from sausage to the cylindrical in shape. Now their number. Talking about their number. See, mitochondria number varies from cell to cell. Varies from cell to cell. From cell to cell. And which thing will decide that a cell have more mitochondria and which cell have the minimum mitochondria is the physiological activity that a cell performs. Means if a cell performs more work, more energetical work in the physiological aspects, then that cell will have the more number of mitochondria. Now we take an example. I will say the sperm cells. The sperm cells. Sperm cells need more energy for their traveling into the uterus. They have the maximum number of mitochondria in their middle trees. So this number varies from cell to this cell, and it depends on the number depends on the physiological activity of the cell. Depends on the physiological activity of the cell. So this is all about the shape and the number of the mitochondria. Now we will talk about its length, its diameter. How does it vary? See, firstly talking about its diameter. Talking about its diameter. Its diameter is 0.2 to 1 micrometer. Its diameter is very small.
0.2 to 1 micrometer. Now talking about its length. How? What is the length of the mitochondria? The length of the mitochondria is 1 to 4.1 in micrometer. Length is 1 to 4.1 micrometer. See, these are written in your NCERT. So these dimensions are very important. Always remember, it is not 4.0, it is 4.1 micrometer. See, according to diameter and the length, the mitochondria is a very small cell organism which is not easily visible under the light, or you can say compound microscope. For seeing mitochondria, for clearly seeing mitochondria, to study its shape, size, and its function, we need to see it inside an electron microscope. We need to see it inside an electron microscope. So, this mitochondria is studied with the help of the electron microscope, and a famous dye is used to stain. A famous dye is used to stain the mitochondria, and that dye name is the Janus green dye. That dye name is the Janus green dye. Janus green dye. This dye is used to stain the mitochondria. See, the cells formerly used some stains to color themselves, so they can be easily visible under your microscopes. So that dye is the Janus green, very important dye. So this is all about your normal introduction about the mitochondria. Now we will see the structure of mitochondria and the functions that it plays in your cell. Okay बच्चों, so हम इसको रख कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं. So note it down, then we will move forward. So now we will see structure. So now let me draw it. So it is a double membrane bound structure. So this cell organelle is a double membrane bound cell organelle. Okay, a double membrane bound cell organelle. This cell organelle, as it is double membrane bound, so you can say it is present only in the eukaryotes. It is not present in the prokaryotes. Now you will ask the question, sir, if it is not present in the prokaryotes, how does the prokaryotic cell produces ATP? How does they produce their energy? Yes, right question. So the answer to that question is that they have the mesosomes, the extension of the plasma membrane. The extension of the plasma membrane, that is the mesosomes. Which functions the role of the mitochondria in the prokaryotes. Which functions the role of mitochondria in prokaryotes. तो देखिए मेरा इवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ, मैं बीच को ऐसे लिखता हूँ, C पर dash. Okay. So mesosomes functions the function of the prokaryote function of the mitochondria in the prokaryotes. Okay. Mesosomes has another functions though also. We will discuss when we will study mesosomes. Right now the functions of the mesosome we can say is in the cellular respiration. So let me talk about it. It's in the cellular respiration. It helps in the DNA replication. It helps in the DNA replication by the theta model. We will study it when we will study the mesosomes, or you can say the prokaryotic cells. Okay, so now let's focus on the structure of the mitochondria. So the mitochondria is a double membrane bound structure consisting of an outer membrane. It is an outer membrane, and that blue colored membrane is the inner membrane. It is the inner membrane.
So this space between the outer membrane and the inner membrane, that space, it is known as perimitochondrial space. Okay, it is known as perimitochondrial space. See, the outer membrane is regular, but the inner membrane has several foldings, several infoldings in between. These infoldings is known as the cristae. These infoldings is known as the cristae. These infoldings is known as the cristae. Sorry. This cristae contains the oxysomes in it. They contain the oxysomes on it. These are the oxysomes which resides on the inner membrane of the mitochondria. Okay. Now inside the mitochondria, first is the outer membrane, second is the inner membrane, then you have perimitochondrial space and cristae. These bead-like structures are the oxysomes, or we say them as the F1 particles. Another name of the oxysomes is the F1 particles. It is also known as ATP synthase complex. We will see how this help in the formation of the ATP also. Okay. So now this space inside the inner membrane, that space is known as the matrix. That space is known as the matrix of the mitochondria. This matrix contains various enzymes for the various cycles which occurs in the respiration. This matrix also contains the small circular double-stranded DNA. It also contains the ribosomes, smaller particles, ribosomes. These ribosomes, these are also inside the mitochondria. And ribosomes, see, ribosomes here is of 70S type, not of 80S type that is present in the eukaryotic cell cytoplasm. Okay, here the ribosomes is of 70S type, that is the prokaryotic ribosomes. Okay, so this is the structure of the mitochondria, which is very essential for your mean point of view, you can say. Okay, every time they can ask the questions via the labeling. Okay, so now how does this mitochondria helps in the formation of the ATP? Why it is known as the powerhouse of the cell? How it helps in the formation of the ATP? We will talk about it now. See, I take you back to 10th class in the chapter life processes. There you study about the respiration. Okay, what is respiration? Respiration is the breakdown of the glucose molecule. Respiration is the breakdown of the glucose molecule into the CO2 and H2. That is the complete oxidation, you can say. During this complete oxidation, the glucose molecules gives out ATP. This glucose molecule gives out ATP. And how does this process occur? See, here you study that C6H12O6 is the glucose molecule. Okay. This is your glucose molecule. This glucose molecule breaks into the pyruvate. See, glucose is a 6-carbon compound. Glucose is a 6-carbon compound. And what about pyruvate? Pyruvate is a 3-carbon molecule. It is a 3-carbon molecule. So you see, here one molecule of glucose consists of 6 carbon, and here is the pyruvate which consists of 3 molecules. So for balancing this, how many pyruvates should be formed here? सर यहाँ पे तो 6 और यहाँ पे 3, तो हम इसको 2 मोल बनाएंगे तो 6 कार्बन के कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन इक्वल. सो दैट्स व्हाई here
के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता था वहां? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है जी, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता था। तो बच्चों ये होती कहां पे थी? पे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, रिमाइंड करने की कोशिश करो। होती कहां पे थी? यस, करेक्ट, दैट इज द साइटोप्लाज्म। इट occurs in the cytoplasm of the cell। अब साइटोप्लाज्म बोलेगा भाई देखो, मैंने तो मेरा काम जो था वो था ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना। अब मेरे से आगे काम नहीं होगा, पायरुवेट से आगे मैं नहीं बना सकता। पायरुवेट कहेगा, अब सेल बोलेगी कि हमें तो एटीपी चाहिए, हमें तो एटीपी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कहेगा अगर आपको एटीपी चाहिए तो आप पायरुवेट को मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपको पायरुवेट से क्या निकाल के दे दूंगा? एटीपी निकाल के दे दूंगा। क्या निकाल के दे दूंगा? एटीपी निकाल के दे दूंगा। यस, सो दिस पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मूव्स इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हियर इट विल come, it will move inside the pyruvate of the matrix of the mitochondria। सॉरी, मिस्टेक से गलती हो गया, तो कभी-कभी बोलते जाता है। Now, if pyruvate molecules come here, now what will happen next? Next, we will have the breakdown of this pyruvate into the CO2 and the H2O with the help of various reactions or the cycles। Two important you can say reactions occurs here, particularly 3 होती हैं यहाँ पे। टॉकिंग अबाउट अगर मैं पूरी सीक्वेंस में देख के चले तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक लिंक रिएक्शन होती है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। देखो ये सभी तुम पढ़ोगे इन डिटेल में रेस्पिरेशन चैप्टर में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। वो तो हम यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे, ताकि वहाँ पे जब आप पढ़ो तो तुम्हें कुछ अजीब सा ना लगे, यहाँ पे चल ही क्या रहा है, ताकि तुम इस चीजों को रिलेट कर पाओ। मेरा मानना है कि बॉटनी को अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे, चैप्टर्स को आप उसमें रिलेट करेंगे और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज को। ओके, तो हम कहां गए? हमारे पायरुवेट अंदर आ गया था माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में। ये बोल देता कि भाई मुझसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा कि पायरुवेट से मैं एटीपी निकाल के दे दूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि सर साहब आप मुझे दीजिए पायरुवेट, मैं निकाल के दूंगा आपको एटीपी। जब वो एटीपी निकाल के देगा तो 3 रिएक्शंस के थ्रू देगा। देखिए, पायरुवेट के बाद जो ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो रिएक्शन चलेगी वो चलेगी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद चलेगी क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या चलेगी? ETS, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी विल हैव आवर ATP और द प्रोडक्ट्स, दैट इज द CO2 एंड द ओके। तो सर पायरुवेट तक का तो काम हो गया था हमारा, अब आगे बढ़ेंगे। तो भाई आगे चलते हैं। सो दिस लिंक रिएक्शन एंड द क्रेब्स साइकिल, दिस लिंक रिएक्शन एंड द क्रेब्स साइकिल occurs inside the matrix of the mitochondria। The matrix of the mitochondria has the several enzymes which are responsible for this link reaction and the Krebs cycle। Krebs cycle को करवाने के लिए जो important हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो कहां पे मौजूद होते हैं सर? वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे और देखते चलेंगे चीजों को। तो यहां पे सर क्रेब्स साइकिल के लिए, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के लिए जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो हमारे इस मैट्रिक्स में होते हैं, इसीलिए क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके सर, समझ गए यहां तक? उसके बाद जी क्रेब्स साइकिल के बाद जो हमारा रेस्पिरेशन है वो मूव कर जाएगा हमारी ETS की तरफ। और ETS कहां होती है जी? ETS होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रेजेंट है हमारे ऑक्सीजन्स। क्या मौजूद है जी? ऑक्सीजन्स। सी, जब यहां पे ATP की फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। किस चीज का सर? जी वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा H+ आयंस का, दैट इज प्रोटॉन्स का। किसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा? प्रोटॉन्स का। ओके जी, जी देखिए
ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। ओके, और यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाई होगी और मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है वो लोअर डाउन रहेगी। और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ब्रेक किया जाएगा, जब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को तोड़ा जाएगा, क्यों तोड़ा जाएगा? कि हर चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है? मूव करती है। ओबीजी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जोन में और यू कैन से दिस F0 F1 पार्टिकल्स का फंक्शन होगा। अभी F0 F1 पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं हम वो देखेंगे। चलिए F0 F1 पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं। तो F1 F0 पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये आपका कंप्लीट, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये F0 बोला जाता है इसको, इसे बोला जाता है F1। Okay, so that's why it is known as F0 F1 particles. Now here what happens? The ADP comes with phosphate and forms the ATP. Okay, this ATP, adenosine diphosphate, comes with phosphate, inorganic phosphate, which are both joined to form the ATP. And this reaction is mediated by enzyme. That enzyme is known as ATP synthase. ATP synthase enzyme. ATP को synthesize करने वाला enzyme. That's why known as ATP synthase. Okay. तो सर concentration gradient का काम कहाँ है? उसका तो काम कहीं पे भी नहीं आया। आपने तो बताया कि यहाँ से concentration gradient break होगा, तब जाके कहीं पे ATP की formation होगी। तो इस ATP की formation में concentration gradient का क्या function था? और कहते हैं protons का क्या function था? Yes, और क्वेश्चन तो देखिए। जब यहाँ ऊपर की तरफ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर हाई कंसंट्रेशन होगी H+ आयंस की, तो इस हाई कंसंट्रेशन को ब्रेक करने के लिए H+ मूव करेंगे वहां पे मैट्रिक्स के अंदर, और जब ये मूव करेंगे यहाँ पे तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे इस F1 पार्टिकल के अंदर, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूटेगा तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे हम। कौन करेंगे यूटिलाइज? एटीपी सिंथेस। क्या बनाने के लिए? एडीपी और पाई फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। इससे क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाएगी। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है क्या बनाने के अंदर? एटीपी बनाने के अंदर। ओके, अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, देन फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बाद इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ओके जी, अंदर मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ओके, एंड राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट दैट आर ऑफ 70s type. So this is the structure. Then we see the functions of the mitochondria. And what is the function of the mitochondria? The function of the mitochondria is, as we all know, it is helping the ATP production, or you can say the aerobic respiration to take part. How does it take part in the aerobic respiration? We deal with that. हमने उसके बारे में जाना। वो क्या था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है पाइरुवेट के अंदर। ये काम होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म में, उसको बोलते क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन उसके बाद सेल क्या कहती है कि मेरे पास साइटोप्लाज्म में अब वो एंजाइम्स नहीं है जो इसको ब्रेक कर दे, पाइरुवेट को ब्रेक कर दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि आपके पास नहीं है, लेकिन चिंता ना करिए जनाब, हमारे पास है। तो पाइरुवेट वहां से आएगा मैट्रिक्स में,
माइटोकॉन्ड्रिया के वहां से क्रेब्स साइकिल रिएक्शन चलेगी, उसके बाद ईटीएस चलेगी और ईटीएस से फिर F1 पार्टिकल के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन की जाएगी। सो ये था एक फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का। हम दूसरे फंक्शंस भी जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। हम एक काम करते हैं, इसको रब करके यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड में कि फंक्शंस क्या क्या हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी की प्रोडक्शन किया जाता है। तीसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उस टाइम पे एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहां से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से ही तो आएगी। तो ये कुछ फंक्शंस थे माइटोकॉन्ड्रिया के जो आपको पता होना चाहिए। और इसको क्या बोल दिया जाता है? एटीपी की प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोल दिया जाता है ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल बोल दिया जाता है। ओके बच्चों, ठीक है फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और ये है उसके फंक्शंस के बारे में। आप यहाँ पे लिख लीजिए ताकि हम इसको एक बार रब करके हम आगे चलें। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम क्या है? इसको क्या बोला जाता है? यस, यू आर गेसिंग इट करेक्ट, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म। लेट मी रब इट। ओके, now mitochondria का division, now we will see the division of the mitochondria। इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फ्यूजन। इट्स डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फ्यूजन। जैसे अमीबा प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, सेम वैसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड करता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करता है। और सर इसका एक दूसरा नाम भी बताया था। तो ये लाइन एंजाइम, ये जो लाइन लिखी है ये एंजाइम लिखी है। सो एवरीबॉडी, देखिए नीट में सिलेक्शन के लिए कहा जाता है कि ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या जरूरी है, ना कि कितना पढ़ना जरूरी है। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूल सकते, उसकी लाइन टू लाइन स्टडी करके चलिए। और एनसीईआरटी में बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जब खत्म होता है उस टाइम के ऊपर लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय द बाइनरी फ्यूजन। ओके, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इसको क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म। इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म। सर ऐसा नाम क्यों दिया गया इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म? बच्चों देखो, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म मींस ये अपने फंक्शंस खुद कर सकता है बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। ये सेल से बिना सेल के ऊपर डिपेंड हुए भी अपने कुछ फंक्शंस कर सकता है। तो कहते हैं सारे नहीं कर सकता, लेकिन कुछ फंक्शंस ये कर सकता है। क्यों कर सकता है ये फंक्शन? सारे क्यों फंक्शंस कर सकता है बिना सेल के ऊपर डिपेंड हुए? बिकॉज इट हैज its own DNA and the protein synthesis machinery। सर ये कहां पे था? ठीक है, हमने डीएनए को देखा था, इसका डीएनए मौजूद था, एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता था, एक मॉलिक्यूल होता था, उसका हमने स्ट्रक्चर के अंदर लेबल किया था। फिर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का क्या मतलब है? प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का मतलब है कि इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं। आपने देखे थे
किस टाइप के राइबोसोम्स मौजूद थे इसके अंदर? यस या यस 70s टाइप के राइबोसोम्स मौजूद थे। किस टाइप के राइबोसोम्स थे इसके अंदर? 70s टाइप के राइबोसोम्स, and that 70s type of ribosomes function of the protein synthesis. When we will discuss the ribosomes, we will discuss how it helps in the formation of the proteins also. Okay, so this is about the mitochondria. ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जिसे हम किसके कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अगला कौन से सेल के लिए पढ़ेंगे? यस, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले आई थिंक होप यू हैव क्लियर्ड दिस माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेल। सो नाउ लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अनदर सेल ऑफ दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, टॉपिक क्या है? वो है प्लास्टिड के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या है? देखो ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, मेजरली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, दो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट नहीं है। किस में पाया जाता है सर? कि अगर एनिमल सेल में एब्सेंट है तो ये पाया जाता है प्लांट सेल में, या आपको मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। ओके सर, या आपको मिलेगा इम्यूनोइड्स के अंदर। ओके जी, इम्यूनोइड्स के अलावा बेटा आपको मिल जाएगा ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर, जिसको हम बीजीए या साइटोप्लाज्म क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ओके सर, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक है। और किस में मिल सकता है सर? ये बेटा आपको मिल जाएगा डायटम्स के अंदर और डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी मिल सकता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, ठीक है। और किसमें मिलेगा ये? और ये मिलेगा आपको एलगी के अंदर, ये आपको मिलेगा एलगी। तो ये इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल सकता है प्लास्टिड। ओके सर, ये प्लास्टिड करता क्या है? प्लास्टिड का दूसरा नाम होता है किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड को क्या बोला जाता है बेटा? किचन ऑफ द सेल। इसको क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर क्या होता है। क्या इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बनता है खाना। जैसे हमारे घरों में किचन के अंदर क्या बनता है? खाना। वैसे ही प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड के अंदर क्या बनाया जाता है? खाना बनाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। ओके जी, देखो बेटा प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड तीन तरह का होता है। किसके बेस पे तीन तरह का होता है? क्या चीज को बेस मानते हैं तब हम इसको तीन चीजों के अंदर क्लासिफाई करते हैं बेटा? वो है पिगमेंट्स। वो क्या है? पिगमेंट्स। इसके बेस पे क्लासिफाई किया बेटा हमने इनको पिगमेंट्स के बेस पे। सर अभी पिगमेंट्स क्या होता है? पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स हर एक कंपाउंड, देखिए इस चीज को आप बिल्कुल क्लियरली समझिए कि पिगमेंट्स होते क्या हैं असल में। असल में पिगमेंट वो है हर वो एक कंपाउंड जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। जो किसको एब्जॉर्ब कर ले? लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे? पिगमेंट बोलेंगे। लिख ही देते हैं आपको, कंपाउंड which observes which absorbs the light, that is known as pigment। ओके, इसके बेस पे हम सर प्लास्टिड को क्लासिफाई डिफाइन करते हैं, सॉरी हम इसको क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में। ओके यस, तो सर वो कौन कौन से तीन टाइप्स हैं? तो बेटा ये प्लास्टिड हमारा, इसके तीन टाइप्स हैं। ओके जी, तो सर क्लासिफिकेशन हमने माना है क्या? पिगमेंट्स। ओके, पिगमेंट्स के बेस पे सबसे पहला हमारे पास आता है बेटा वो होता है क्लोरोप्लास्ट। वो क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ओके ओके सर, दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? दूसरा टाइप, ये पहला टाइप हमारा, दूसरा टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट। ओके सर, दूसरा क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो
तीसरा बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन टाइप्स होते हैं प्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। अब सर पिगमेंट्स के बेसिस पे किसमें पिगमेंट है, किसमें पिगमेंट नहीं है तो किसमें कौन सा पिगमेंट है, ओके आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल डिस्कशन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। किस नाम का पिगमेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। एंड सर इसमें क्रोमोप्लास्ट में बेटा प्रेजेंट होते हैं फैट soluble pigments like these pigments are carotenoids। ओके, और इन carotenoids बेटा दो प्रकार के होते हैं, that is one is carotene, another is the xanthophil। ओके ओके सर, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट में होता है सर कैरोटीनॉइड्स। इसके अंदर दो पिगमेंट आते हैं, कैरोटीन एंड xanthophyll। ओके सर, तो सर फिर ल्यूकोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट बेटा इज द कलरलेस प्लास्ट। इसके अंदर कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता, नो पिगमेंट इज प्रेजेंट, नो पिगमेंट इज एब्सेंट। यहां पे पिगमेंट एब्सेंट होता है, यहां पे क्या होता है? पिगमेंट एब्सेंट होता है। इसीलिए बेटा ल्यूकोप्लास्ट को पिगमेंट ना होने के कारण इसको कलरलेस प्लास्ट बोला जाता है, क्योंकि कोई कलर तो है नहीं। देखो पिगमेंट कलर भी प्रोवाइड करता है, नो डाउट। प्लांट्स में डिफरेंट जो कलर्स आप देखते हैं, जैसे लीव्स जो होती हैं वो मेजरली आपको ग्रीन कलर की देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है ग्रीन कलर? बिकॉज़ दे आर द क्लोरोप्लास्ट व्हिच वी हैव क्लोरोफिल, दैट इज व्हाई द प्लांट्स आर द ग्रीन। ओके, आपको फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के देखने को मिलते हैं। वो सब किसके कारण है? उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे एंथोसाइन हो गया, कैरोटीन, xanthophyll, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन सर ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड है? कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड है? कलरलेस प्लास्टिड। ओके सर, आपने बता दी कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। तो सर यहाँ पे तो फंक्शन चलो ठीक है समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट है तो वो लाइट को कहीं ना कहीं ट्रैक करने में हेल्प कर रहे होते हैं पिगमेंट्स, क्योंकि पिगमेंट्स का काम क्या है? होते क्या है पिगमेंट्स? जो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो सर ल्यूकोप्लास्ट के पास पिगमेंट ही नहीं है तो फंक्शन क्या करेगा बेटा? फंक्शन के बेस के ऊपर ही हम ल्यूकोप्लास्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे? फंक्शन के बेस पे। इसका मेजर फंक्शन होता है स्टोरेज का। इसका मेजर फंक्शन किसका है? चीजों को स्टोर करके रखने का। जैसे अब खाना तो बन गया, लेकिन अब उसको स्टोर करके कौन रखेगा? उसको ऐसे स्टोर करके कौन रखेगा? तो स्टोर करके रखने का काम किसका है प्लांट्स के अंदर? वो बेटा ल्यूकोप्लास्ट। किसका है? ल्यूकोप्लास्ट। यस, सो ये तीन टाइप्स का होता है। किस टाइप का सर? सबसे पहला टाइप जो ल्यूकोप्लास्ट का होता है वो होता है अमाइलोप्लास्ट। फर्स्ट इज दी अमाइलोप्लास्ट। ओके सर, एक अमाइलोप्लास्ट हो गया। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। ओके सर, तीसरा टाइप होता है एलायोप्लास्ट। तीसरा टाइप कौन सा बेटा? एलायोप्लास्ट। ओके एलायोप्लास्ट। तो सर हमने इसको क्लासिफाई किसके बेस पे किया है? ये हमने इसको क्लासिफाई किया बेटा ल्यूकोप्लास्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। यस, तो सर अब ये जो अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट है, इनमें इनका क्या फंक्शन है? हर किसी का एक अलग फंक्शन है। तो अब तक आप ये समझ रहे हो क्योंकि इसका फंक्शन जो मेन है किसका है? स्टोरेज का। लेकिन सर अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है बेटा? अमाइलोप्लास्ट जैसा नाम सुनिए, अमाइलेज एंजाइम पढ़ा है। अमाइलेज जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता था? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में। यस, अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करके रखता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज।
कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करके रखता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का काम किसका बेटा? अमाइलोज का। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो, इसके अंदर पोटैटो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका अमाइलोज का एग्जांपल पोटैटो दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के अंदर। ओके सर, तो सर फिर एल्यूलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? बेटा एल्यूलोप्लास्ट स्टोर करता है अपनी प्रोटीन्स को। इसको स्टोर करके रखता है बेटा, प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है। ओके, एलायोप्लास्ट क्या करता है सर? एलायोप्लास्ट बेटा स्टोर करता है अपने ऑयल्स को। ऑयल स्टोरेज का फंक्शन है सर। इसका फंक्शन बेटा ऑयल स्टोरेज का फंक्शन। तो ये है बेटा का ल्यूकोप्लास्ट, तीन टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड है, दैट इज अमाइलोप्लास्ट, एल्यूलोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं इसको। और अमाइलोप्लास्ट क्या फंक्शन करता है सर? अमाइलोप्लास्ट बेटा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करके रखता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। और एल्यूलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन्स को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? प्रोटीन्स को। एंड सर एलायोप्लास्ट वो बेटा ऑयल को स्टोर करके रखता है। अमाइलोप्लास्ट को रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या करोगे सर? हमने अमाइलोप्लास्ट से रिलेटेड वर्ड पढ़ा है, अमाइलो से रिलेटेड अमाइलेज रिलेट कर पाए? यस, दैट अमाइलेज क्या फंक्शन करता था? वो सर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता था। ओके, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता था। अमाइलोप्लास्ट क्या काम करेगा बेटा? यहाँ पे स्टोरेज का काम करेगा। किसका काम करेगा? स्टोरेज। यस, गुड। नाउ एल्यूलोप्लास्ट प्रोटीन एंड एलायोप्लास्ट इज इन फॉर। ओके, नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इन डिटेल दिया गया है वो बेटा क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में दी गई है। ये क्लोरोप्लास्ट की शेप का होता है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ओके, वो क्या फंक्शन करता है क्या नहीं। तो मैं इसको रख कर देता हूं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। ओके, तो इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। और देखिए अभी हम आपको थोड़ी देर में एक चीज बताएंगे। देखिए आपने घर में देखा होगा हरे रंग का टमाटर कन्वर्ट हो जाता है लाल रंग के टमाटर के अंदर। कभी सब्जी लेने गए हो? भाई कभी सब्जी लेने गए हो? नहीं सर, ये हमारा काम नहीं है, ये मम्मी करती है। आप भी क्या करोगे? देखो उस टाइम में माँ क्या करती है कि जो टमाटर थोड़े से बिल्कुल ही थोड़े से लाइट ग्रीनिश कलर के होते हैं उनको घर पे लेके आ जाते हैं। क्यों लेके आ जाते हैं? क्योंकि उनको पता है ये टमाटर खराब नहीं होगा, क्योंकि अभी से धीरे धीरे टमाटर उसका रंग बदलेगा, ऐसा होता जाएगा, लाल होता जाएगा। आपने देखा होगा घर पे शायद टमाटर के साथ भी और मिर्च के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा, नहीं देखा? देखा अगर मम्मा से कुछ जरूर बताएंगे, हम वो देखेंगे वो किस कारण से होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम पढ़ रहे थे लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था। ओके, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की जो लेंथ होती है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में बताएंगे। लेंथ के बारे में और विड्थ के बारे में। देखिए ये जो डायमेंशंस है ना, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन डायरेक्ट लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन दे सकता है। तो बेटा लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है इसकी क्लोरोप्लास्ट। ओके, और विड्थ की बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर की। ओके सर, 5 से 10 माइक्रोमीटर की लेंथ हो गई, 2 से 4 माइक्रोमीटर की विड्थ हो गई। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले काफी बड़ी सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले बड़ी सेल भी है, तो हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इट इज इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। इट्स नॉट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर the Janus-Levy dyes like to stay in this chloroplast and visible them. Okay, easily visible under the microscope. Sir, now shape. ये तो सर आपने साइज की बात होगी इसकी, कि क्लोरोप्लास्ट का साइज कैसे होता है। तो सर हम इसकी शेप के बारे में देखेंगे। तो देखो बेटा एग्जैक्टली लाइन लिखी हुई है और इसकी शेप जो है वेरी करती है। इट कैन वेरी फ्रॉम डिस्कोइड रेटिकुलेट, इस चीज को इट कैन वेरी वेरिएबल इन शेप।
भी हो सकती है। तो बेटा इट कैन बी, सबसे पहले इट कैन बी कप शेप, इट कैन बी कप शेप भी हो सकती है, इट कैन रेटिकुलेट शेप, नेट लाइक शेप, रेटिकुलेट। ओके बेटा, इट कैन बी ऑफ डिस्कोइड शेप, एक ही शेप भी पाई जा सकती है, डिस्कोइड शेप भी मिल सकती है। ये कुछ इसकी शेप्स होती है। सर कप शेप किसमें देखने को मिलता है? तो देखो ये हम बात बता रहे हैं आपको कि किसमें देखने को मिलता है, किसमें नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रिमेंबर। कप शेप इज प्रेजेंट इन द क्लेमाइडोमोनास, 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 ये ग्रीनरी, एक यूनिसेलुलर ग्रीनरी है, प्लांट किंगडम के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। रेटिकुलेट किसमें मिलता है सर? ये मिलता है बेटा यूलोथ्रिक्स के अंदर, किसके अंदर मिलता है? यूलोथ्रिक्स के अंदर, ये भी एक ग्रीनरी। ओके, अब डिस्कोइड शेप, डिस्कोइड शेप किसके अंदर मौजूद होती है? डिस्कोइड शेप इज प्रेजेंट इन दी हायर प्लांट्स, ये हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो अपने हायर प्लांट्स हैं जो फॉर्म्स देते हैं उनमें पाया जाता है डिस्कोइड शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके सर, हमने साइज के बारे में बात कर ली, हमने शेप के बारे में बात कर ली, अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसके नंबर के बारे में। ओके, जब हम इसके नंबर के बारे में देखते हैं, अब हम इसके नंबर के बारे में, तो इसका नंबर तो बेटा क्या होता है? वेरिएबल होता है। कैसा होता है? वेरिएबल, इस सेल टू सेल बदलता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सबसे कम, अगर हम बात करें तो ये 1 पर सेल भी हो सकता है, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट, ऐसा सर किसमें देखने को मिलता है? बेटा ऐसा देखने को मिलता है, अभी हमने देखा कप शेप क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द क्लेमाइडोमोनास के। ओके, क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, और सर बेटा 20 से 40%, 20 से 40, एक सेल के अंदर 20 या 40, 20 से 40 के बीच में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है सर? बेटा मीसोफिल सेल्स के अंदर, मीसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो मीसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं। ओके, ये बात हो गई क्लोरोप्लास्ट की साइज के बारे में, क्लोरोप्लास्ट की शेप के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में। और सर क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या जरूरी है? देखो क्लोरोप्लास्ट का जरूरी हमारे पास साइज, शेप एंड नंबर के बाद आता है बेटा, साइज, शेप, नंबर के बाद आता है अपना स्ट्रक्चर। क्या आता है? स्ट्रक्चर, कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखाई देता है, कैसा। तो क्लोरोप्लास्ट में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, सो जब हम इसके स्ट्रक्चर की ओर बात करते हैं, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके बेटा, ये स्ट्रक्चर है और ये मेम्ब्रेन वैसे दिखता है, एवोल्यूशन ऐसे हो रखा है। ठीक है, तो इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है, कैसा नहीं। तो ये सर ऐसे, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ओके, और ये जी आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, and this is the inner membrane. Okay, सही, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है क्या? यस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है। दोनों के अंदर ही लिपिड मौजूद होता है, लिपिड की ही बाइलेयर होती है। दोनों की क्या है? लिपिड की बाइलेयर। दोनों के अंदर ही क्या है? ये लिपिड बाइलेयर है। ये भी लिपिड बाइलेयर है और ये भी लिपिड बाइलेयर है। तो डिफरेंस क्या होता है?
डिफरेंस प्रेजेंट होता है बेटा प्रोटीन्स का। इसका डिफरेंस होता है प्रोटीन्स का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इसी की वजह से आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल होती है, इनर मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा फ्रीली परमेबल नहीं होती, दैट इज वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ओके ठीक है सर। अब सर इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बाद क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? इसके अंदर मौजूद होते हैं एज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे क्या बोलते हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। और हम इस एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? थाइलाकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड बोलते हैं। ओके। और जब एक थाइलाकोइड को दूसरे थाइलाकोइड के ऊपर जब हम जमा रख देते हैं, एक थाइलाकोइड को दूसरे थाइलाकोइड के ऊपर जब हम रख देते हैं तो एक स्टैक बन जाता है। सेम वैसे ही जैसे कि आप 4-5 किताबें रख लीजिए, स्टडी टेबल के ऊपर बुक्स रखते हैं, एक बुक, एक नोटबुक, उसके ऊपर दूसरी नोटबुक, उसके ऊपर तीसरी नोटबुक, उसके ऊपर चौथी नोटबुक। सेम वैसे एक नोटबुक, दूसरी नोटबुक, तीसरी, चौथी। तो सेम ऐसे एक पूरा बंडल सा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। उस पूरे स्टैक को क्या बोला जाएगा? इस पूरे के पूरे स्टैक को क्या बोला जाएगा? इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, इसको ग्रेनम क्या बोला जाएगा? ग्रेनम। लेकिन इस एक को क्या बोला जाएगा? थाइलाकोइड। सेम वैसे जैसे एक नोटबुक, दूसरी, तीसरी, जैसे आपने सबसे पहले जूलॉजी की नोटबुक रखी, फिर बॉटनी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो उसमें से पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की अगर नोटबुक को देखेंगे तो वो हमारा थाइलाकोइड, और जब हम चारों को एक साथ देखेंगे तो वो हमारा ग्रेनम। ओके यस। और दो ग्रेनम को एक साथ जो चीज जोड़ती है, जो स्ट्रक्चर जोड़ता है, ये दूसरा ग्रेनम एक स्ट्रक्चर को जो एक साथ जोड़ती है, इसको बोला जाता है बेटा स्ट्रोमा लैमिन। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा लैमिन। कैसे सर स्ट्रोमा लैमिन? मतलब देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस है, पूरा जो खाली स्पेस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उस चीज को क्या बोलते थे? यस मैट्रिक्स बोलते थे। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको बोला जाएगा स्ट्रोमा। यहाँ पे इस खाली स्पेस को क्या बोला जाएगा? स्ट्रोमा। तो इस स्ट्रोमा के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो इन दोनों मेम्ब्रेन को क्या कर रही है? आपस में कनेक्ट कर रही है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनम। ओके यस गुड। अब सर इस स्ट्रोमा के अंदर और क्या मौजूद होता है? थाइलाकोइड मौजूद हो गई, ग्रेनम मौजूद हो गई, और क्या मौजूद होता है? तो इसके अंदर बेटा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और सर और इसमें क्या होता है? और इसके अंदर बेटा इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम बेटा 70S टाइप की, जैसे सेम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना, सेम वैसे ही 70S टाइप के राइबोसोम्स हमारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके ठीक है जी। तो सर बेटा ये बात हो गई हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारा क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखाई देता है, कैसा नहीं दिखाई देता है। ओके तो सर ये तो आपने साइज भी बता दिया, शेप भी, नंबर भी, स्ट्रक्चर भी। अब सर हमें बताइए कि इसका फंक्शन क्या है? देखिए बेटा हमने आगे भी क्या कहा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? तो आपने बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मौजूद होता है क्लोरोफिल। ओके तो सर ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद कहां पे होगा? ये तो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन इसमें हमें कहीं भी क्लोरोफिल तो दिखाई नहीं। देखिए बेटा क्लोरोफिल जो मौजूद होती है वो इन थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। जो थाइलाकोइड्स दिखाई देते हैं इसी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है क्या? क्लोरोफिल। और एक काम क्या करती है? लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म कराती है। इसको परफॉर्म कराती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को। ओके सर। तो सर क्लोरोफिल जो होती है वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है बेटा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। तो इसका काम क्या होता है सर? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इसमें हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है? यस छोटे रूप से पढ़ जाओ। फोटोसिंथेसिस क्या? फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ CO2 and H2O in the presence of the sunlight,
in the presence of the sunlight and the chlorophyll. Yes, in the presence of the sunlight and the chlorophyll. और इसके में छोटी सी भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि it is the conversion of the light energy into the chemical energy. लाइट जो एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी, लाइट एनर्जी की फॉर्म है, उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज ग्लूकोज के अंदर। यस, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो सर फोटोसिंथेसिस ये हो गई। यहाँ पे कैसे क्या काम है सर, देखिए यहाँ तक सेल चैप्टर में अपना इतना ही दिया हुआ है, लेकिन इसका आगे फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करती है, ये हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देखते हैं। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे करेंगे। क्या काम करता है फोटोसिंथेसिस, दो रिएक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम उसको लाइट रिएक्शन बोल देते हैं और दूसरी को हम क्या बोल देते हैं, डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। ओके, एक को लाइट रिएक्शन, एक को डार्क रिएक्शन। तो सर लाइट रिएक्शन कहां होती है, लाइट रिएक्शन बेटा होती है इन थाइलाकोइड्स के अंदर, जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। और सर ये डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा। ये किसके अंदर होती है ना, स्ट्रोमा के अंदर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर कि लाइट रिएक्शन तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स रिस्पांसिबल होते हैं वो कहां पे मौजूद होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। और लाइट रिएक्शन के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजें कहां मौजूद होती है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। ओके, इसके अंदर मौजूद होती है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। तो ये था हमारा ओवरव्यू क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हमने सब कुछ देखा, साइज, शेप, नंबर, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है वो, सर वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। वो फोटोसिंथेसिस सर वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर और सर स्ट्रोमा के अंदर चलती है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है और सर डार्क रिएक्शन चलती है, वो चलती है कहां बेटा, वो चलती है स्ट्रोमा के अंदर चलती है। ठीक है, तो ये है हमारा एक ओवरव्यू एक क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब बात आती है कि सर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो हो गया कि हमारा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एटीपी बनाता था। ये सब ठीक है, प्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोल देते हैं, किचन ऑफ द सेल बोल देते हैं। ठीक है सर, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन आपने एक चीज कॉमन देखी होगी सर, वो क्या थी कॉमन, देखिए वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था और ये भी कैसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो सर ये प्रोकैरियोट्स के अंदर इसका कौन फंक्शन कर रहा होगा, जो हमने सुना है सर कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। हमने मोलेरा में पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो सर वो कैसे इस फोटोसिंथेसिस का काम कर सकते हैं, उसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यस, वहां पे क्या मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर, वहां पे मौजूद होता है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स, अब सर ये क्रोमेटोफोर्स क्या चीज है, जैसे बेटा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन कर रहा था, यस मीसोसोम्स कर रहे थे। तो यहाँ पे सेम क्रोमेटोफोर्स किसका फंक्शन करेंगे, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन करेंगे और उसके ऊपर से फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेंगे किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। फंक्शंस as a ordinary for photosynthesis in prokaryotic organisms। उसे क्रोमेटोफोर्स मिलते कहां पे हैं, ये सेम वैसे बेटा, ये सेम मीसोसोम्स की तरह ही इनफोल्डिंग्स होती है। क्या होती है ये, इनफोल्डिंग्स होती है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स नॉट प्राइम मिनिस्टर। ओके, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है सर, ये हो गया हमारे क्रोमेटोफोर्स के बारे में। तो ये रहा हमारे प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड के शेप, प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में, जो किस टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है सर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप का होता है फंक्शंस के बेस पे, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड एरेरोप्लास्ट। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट का केमिकल स्ट्रक्चर देखा। अब आते हैं हम वो चीज जिसके बारे में हम कह रहे थे आपसे कि आपने देखा होगा कि जो हरे रंग का टमाटर है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर के अंदर। तो सर मिर्च भी ऐसे होता है कि जो हरे रंग की मिर्च होती है उसको
ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख लिया तो सर वो कन्वर्ट हो जाती है रेड कलर के अंदर। ऐसा क्यों? सोचिए। देखिए मैं यहाँ पे इसको इस चीज को समझाने के थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए जब आपका टोमेटो ग्रीन था, ग्रीन है मतलब कौन सा कलर है, सॉरी ग्रीन है मतलब कौन सा पिगमेंट है मौजूद है उसके अंदर, ग्रीन है मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है सर, हमने अभी पढ़ा है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है सर। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है सर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। ओके लेकिन सर आज आगे से टोमेटो मैं नहीं बोलता वो होता भी टोमेटो किस कलर का हो जाता है, धीरे धीरे रेड कलर का। शुरुआत में देखा जब पेड़ में लगा रहता है उसके ऊपर तभी टोमेटो ग्रीन टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये रेड में कैसे कन्वर्ट हो गया ग्रीन से रेड के अंदर? तो अभी हमने पढ़ा था कि ल्यूकोप्लास्ट में तो कोई पिगमेंट है नहीं, ल्यूकोप्लास्ट में तो कोई पिगमेंट है नहीं, तो पिगमेंट है कौन सा? कौन सा और प्लास्ट में बचेगा सर? क्रोमोप्लास्ट बचता है, क्रोमोप्लास्ट बचता है। तो यस क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोप्लास्ट। इसीलिए जो ग्रीन कलर की जो तुम्हारे टोमेटो या चिलीज होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? रेड कलर के अंदर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल क्या कर देता है? लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो सर इससे हमें एक बात पता चलती है, वो क्या कि सर हम जो प्लास्टिड होते हैं ना वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, और ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये भी चेंज हो सकता है किसके अंदर? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ओके सो एक लाइन हम लिख सकते हैं और वो क्या है कि प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये आपस में क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट। ओके सो हम अपना डिस्कशन यही एक चीज और बचती है, वो क्या बचती है ना? देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, उसमें भी राइबोसोम था, यहाँ पे भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और यहाँ पे भी राइबोसोम। तो इसको भी हम बेटा क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। यस both these structure that is the plastid or you can say chloroplast and the mitochondria and plastid, both these structures, so you can say chloroplast also, both these structures are the semi autonomous cell। कैसे सेल होती है? सेमी ऑटोनोमस सेल होती है। क्यों है? सेम वही रीजन, इनके पास खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, खुद की राइबोसोम्स दैट एक्ट्स एज ए प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, ये दोनों ही मौजूद होती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? इनको बोल देते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ओके बेटा, और इनका जो ओरिजिन होता है कि ये कहां से आई है, देखो इनका जो ओरिजिन है आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा, वो हिंट कहां से मिलता है? हमें मिलता है इसके डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम से। ध्यान से देखिए राइबोसोम किस टाइप के? इसमें 70s टाइप के। यस सर, इसमें डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर, तो वो भी सर्कुलर है। ऐसा डीएनए और ऐसे राइबोसोम्स बेटा कहां पाए जाते हैं सर? ऐसे डीएनए और ऐसा राइबोसोम्स तो सर प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो यस हुआ क्या, इसका जो ओरिजिन है वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू समझते हैं। तो ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। हम किसके थ्रू समझते हैं? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू समझते हैं। और वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या समझाती है? ओरिजिन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द प्लास्टिड एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, कि सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डेवलप हो गए, और इसके सबूत क्या है? उस चीज के एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को जो प्रूव करते हैं, सही प्रूव करते हैं, उस चीज का प्रूफ है कि सर इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम सर प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। तो हुआ क्या, लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन देखिए, ऐसी तो है नहीं कि साल 2 साल की प्रोसेस है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, बल्कि इस चीज को इवोल्यूशन को होने के लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके सो हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको फिर कभी कराएंगे। अभी के लिए ये हमारे जो 2 टॉपिक्स थे, दैट इज
mitochondria and the chloroplast were complete. Thank you so much from my side. Okay, now we will see you in the next video. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखिए ये याद रखिए कि नीट के लिए क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना जरूरी नहीं है। नीट के लिए एनसीईआरटी और इंटरव्यू मत भूलिए। तब तक के लिए भी हैप्पी। थैंक यू सो मच।